Good morning and Jai Hind everyone. So dear students, welcome to Geography class. Dear students, in last period we have started a new chapter and the chapter is agriculture. Most important economic activities of the world. And we have discussed many topics in previous period. And we started types of farming in last period. And in types of farming, we have already discussed about subsistence farming. Subsistence farming, it is a type of farming which is done or which is practiced for the family's consumption. ये एक सिस्टम है फार्मिंग का जिसमें फार्मर अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए क्रॉप ग्रोन कराता है. जो लेबर है दे आर द मेंबर ऑफ द फैमिलीज. They use primitive methods for cultivation and the production is low. इसमें production low होता है. They use manures and very little fertilizers. That's why production is low and that's why the farmers which practice subsistence farming are poor. Now the next farming. So let's start. I think everyone is having book. So please open the book and just come to types of farming. So dear students, we have already discussed about subsistence farming. Now we are going to discuss shifting cultivation. It is mainly practiced in the forested areas of the Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and parts of Northeast India. What they do in this type of cultivation? The land is cleared by cutting and burning bushes and trees. सबसे पहले क्या करते हैं? फॉरेस्ट एरिया में पहले लैंड को वो क्लियर करते हैं, वो बुशेस और ट्रीज को कट करते हैं, फिर उसको बर्न कर देते हैं. इसमें भी जो फार्मिंग मेथड्स है दे आर प्रिमिटिव एंड क्रॉप्स लाइक yam, cassava, maize and potatoes are mostly grown through this type of cultivation. After about 2 or 3 years, the soil loses its fertility. जब वो लगातार 2 या 3 साल तक उस पर कल्टीवेशन कर लेते हैं तो सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देता है. एंड जस्ट वेट, लेट मी मेक इट बिग. ओके, so about 2 or 3 years the soil loses its fertility and becomes unproductive. 2 या 3 साल तक लगातार इस पे क्रॉपिंग करने के बाद सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाती है और ये अनप्रोडक्टिव हो जाता है. तो फार्मर क्या करते हैं? देन द फार्मर शिफ्ट्स टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. वो उस पार्ट को छोड़कर किसी दूसरे पार्ट में चले जाते हैं और वो क्या करते हैं? वहां भी वो लैंड को क्लियर करते हैं. They cut trees and bushes and burn. So this method is also called slash and burn agriculture. ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. है ना, इसके अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग लोकल नेम्स हैं. लाइक Zoom in Northeast India, Ladang in Malay Peninsula, Chengin in Philippines, Milpa in Central America, Konuk in Venezuela, Roca in Brazil and Masole in the Congo Basin of Africa. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नेम हैं अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग रीजन्स में. उसके बाद जो नेक्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग. Nomadic herding. Nomads are tribes who move from place to place in search of means of subsistence. देखो nomads कौन है? ये वो tribes हैं
जो सबसिस्टेंस के लिए एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते हैं. So people who move in search of pastures for their domesticated animals are known as nomadic herders. वो लोग जो अपने पाले हुए जानवरों के लिए, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के लिए पास्चर्स, ऐसा एरिया खोजते हैं जहां पे वो खिला सके उनको, दे आर नोन एज नोमेडिक हर्डर्स. और यू नो देयर सीजनल मूवमेंट विथ लाइव स्टॉक, वो जो मूवमेंट करते हैं उनका सीजनल होता है. वो समर में अपहिल पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं और जब विंटर आ जाता तो वो डाउनहिल आ जाते हैं इन सर्च ऑफ पास्चर्स. तो ये जो उनका मूवमेंट है, सीजनल मूवमेंट है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसह्यूमेंस. क्लियर? सो द सीजनल मूवमेंट ऑफ nomadic herders is also called transhumans. Now the nomadic herding is mainly practiced in the arid and semi-arid regions of Sahara in Africa, Central Asia, and in some parts of India like Rajasthan, Jammu and Kashmir. And the animals reared are sheep, goats, camels, and yaks. These animals provide food such as milk and meat. They also provide wool and hides which are used to make clothes and shelter. वो जो एनिमल्स पालते हैं वो शीप, गोट्स, कैमल्स एंड याक्स हैं. ये मिल्क भी देते हैं, मीट भी देते हैं, ये ऊल भी प्रोवाइड करते हैं, हाइड्स भी प्रोवाइड करते हैं जिससे क्लॉथ्स और शेल्टर बनते हैं. The nomadic herders do not have permanent dwelling. इनका कोई परमानेंट जगह नहीं होता. ज्यादातर वो टेंट्स में रहते हैं जिसको आराम से डिसमेंटल कर लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आराम से उसको लेके चले जाते हैं. ठीक है? सो दे आर नॉट हैविंग परमानेंट ड्वेलिंग्स. उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मिंग है दैट इज सीडेंटरी फार्मिंग. देखो, इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर as food gatherer, as hunter, as herder और shifting cultivator. ठीक है ना? पहले फार्मर इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. When farmer learned to maintain soil fertility, लेकिन जब फार्मर ने सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना सीख लिया, वो एक जगह पे सेटल्ड हो गए. नए नए टेक्निक्स उन्होंने जो है डेवलप कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, लाइक क्रॉप रोटेशन, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी कंजर्व हो सके. उन्होंने सिंपल टूल्स बना लिए कल्टीवेशन के और कैटल को रेयर करना स्टार्ट कर दिया, उनको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया. और उनका जो फ्री टाइम होता था, he developed some cottage industries based on local raw materials. और इसका फायदा क्या हुआ? Supplemented his income as settled farmer. एक सेटल्ड फार्मर के रूप में उनका इनकम जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा. फिर एक अलग नेक्स्ट जो है फार्मिंग टाइप दैट इज इंटेंसिव फार्मिंग. देखो, इन इंटेंसिव फार्मिंग द फार्मर ट्राइज टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट फ्रॉम अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है? फार्मर जो है, जो भी उसके पास प्लॉट अवेलेबल है, स्मॉल प्लॉट अवेलेबल है, वो चाहता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन हो जाए, आउटपुट मिल जाए. द फार्मर यूजेस सिंपल टूल्स एंड अबंडेंट ह्यूमन लेबर. सिंपल टूल यूज करते हैं, बहुत ज्यादा ह्यूमन लेबर यूज करते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन the densely populated countries of the monsoon region. ये जो फार्मिंग है ये मेनली कहां पे प्रैक्टिस होता है? वो रीजन जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेंस है. Due to a long growing season and fertile soil, the farmer is able to grow 2 or 3 crops annually on same land.
ग्रोइंग सीजन बहुत लॉन्ग है होता है, सॉइल बहुत फर्टाइल होते हैं, इसलिए फार्मर 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को एक साल में सेम लैंड से ग्रो करा सकता है। राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्रो। राइस जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिसको वो ग्रोन कराते हैं। अदर क्रॉप्स भी हैं, दे आर व्हीट, मेज, सुगर केन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। Then the other type of farming is commercial farming. क्या होता है इसमें? In commercial farming, the crops are grown and livestock are reared for sell in the market. इसमें क्रॉप्स ग्रो कराते हैं और लाइव स्टॉक को डोमेस्टिकेट करते हैं मार्केट में बेचने के लिए, सेल करने के लिए। और कॉमर्शियल फार्मिंग दोनों तरह के हो सकते हैं, ये इंटेंसिव भी हो सकते हैं, एक्सटेंसिव भी हो सकते हैं। द फार्म्स होते हैं, द फार्म्स आर जनरली लार्ज इन साइज। जहां पे कॉमर्शियल फार्मिंग होती है वहां पे फार्म की साइज, जो लैंड फार्म्स है उसकी साइज बहुत बड़ी होती है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कॉमर्शियली उसको सेल करने के लिए ग्रोन कराते हैं तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। The farmers try to keep the cost of production as low as possible. इसीलिए चूंकि इसको उसको मार्केट में सेल करना है तो फार्मर्स कोशिश करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है जितना कम से कम हो। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन द फार्म इज डन बाय मशीन्स। यहां पे जितना भी काम होता है वो ज्यादातर मशीनों से होता है। और ये कहां प्रैक्टिस्ड होता है? इन द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द पैम्पास ऑफ साउथ अमेरिका and the steppes of Eurasia. Commercial grain farming in the middle latitudes is essential of this type. So it was about commercial farming. Now extensive farming. It is mostly practiced in the sparsely populated areas. उन एरियाज में जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, वेयर अबंडेंट लैंड इज अवेलेबल, जहां पे लैंड बहुत ज्यादा अवेलेबल है और जो कि फार्मिंग के लिए सुटेबल हो। द लैंड होल्डिंग्स आर यूजुअली लार्ज एंड द फार्म वर्क इज डन बाय मशीन। यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग्स होते हैं जिसपे फार्मिंग होती है वो बहुत बड़े होते हैं और सारा काम मशीन से होता है। 1 or 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन। ज्यादातर वो 1 या 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रोन कराते हैं एंड द सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है दे आर व्हीट एंड मेज। ये जो टोटल आउटपुट है वो बहुत ज्यादा होता है लेकिन यील्ड पर हेक्टेयर इज लो। पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन की बात करें एवरेज तो वो बहुत लो है। इन सम रीजन्स द विंटर सीजन इज लॉन्ग। और अगर विंटर सीजन लॉन्ग होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? इट रेस्ट्रिक्ट्स द ग्रोइंग सीजन। इन सच एरियाज ओनली 1 क्रॉप इज ग्रोन। जहां पे विंटर सीजन बड़े ज्यादा लंबे हैं वहां पर केवल एक ही क्रॉप ग्रो कराते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग। डियर स्टूडेंट, इन मिक्स्ड फार्मिंग लाइव स्टॉक्स आर रेयर्ड along with क्रॉप फार्मिंग। इसमें क्रॉप फार्मिंग भी करते हैं और लाइव स्टॉक को पालते भी हैं, डोमेस्टिकेट भी करते हैं। यहां पर फूड क्रॉप्स भी ग्रोन कराते हैं और फॉडर क्रॉप्स भी ग्रोन कराते हैं। फूड क्रॉप्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉडर क्रॉप्स फॉर एनिमल्स, रेयर्ड लाइव स्टॉक। कैटल रियरिंग फॉर मिल्क एंड मीट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। ये जो लोग कैटल रियरिंग करते हैं, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं मेनली मिल्क और मीट के लिए, और ये मिक्स्ड फार्मिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है वी कैन से। इट इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज। वो एरियाज जो बहुत थिकली पॉपुलेटेड है, दे आर यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। The farmer follows a well-developed system of crop rotation, which also helps in retaining the soil fertility. यहाँ पे farmers क्या करते हैं? क्रॉप रोटेशन के सिस्टम को यूज करते हैं, फॉलो करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो लगातार मेंटेन रहती है। यहाँ पर जो जनरली यील्ड जो है दैट इज हाई, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है दैट इज हाई।
efficient methods of farming, quick means of transportation, and a ready market in the nearby thickly populated areas ensure good return for the farmers. फार्मर्स को जो एफिशिएंट मेथड है फार्मिंग का, ट्रांसपोर्टेशन इजी अवेलेबल है, बहुत बड़ा मार्केट उनके लिए तैयार है, और जो कि थिकली पॉपुलेटेड एरियाज के हैं, उसका फायदा मिलता है कि उनका जो रिटर्न होता है फार्मर्स का वो बहुत बेहतर होता है इस सिस्टम में. प्लांटेशन एग्रीकल्चर, डियर स्टूडेंट, इट इज ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग. ये भी एक तरह का कॉमर्शियल फार्मिंग है. और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. द फार्म्स कॉल्ड ई स्टेट्स आर वेरी लार्ज. प्लांटेशन के जो फार्म्स होते हैं उनको ई स्टेट्स कहते थे उस समय, बहुत बड़े बड़े होते थे. एफिशिएंट एंड साइंटिफिक मेथड्स आर यूज्ड. प्लांटेशन एग्रीकल्चर में एफिशिएंट और साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जाते थे या अभी भी किए जाते हैं. चीप and skilled labor and huge capital investments are required. Labor cheap labor required है, skilled labor required है, और बहुत बड़ा investment required है इस तरह के फार्मिंग के लिए. मोस्टली सिंगल क्रॉप, एक सिंगल क्रॉप ग्रोन कराते हैं, जैसे टी, कॉफी, सुगर केन, रबड़, बनाना, स्पाइसेस एंड कॉटन. एक सिंगल क्रॉप ग्रोन कराते हैं. और ये जो प्लांटेशंस है ना, इसको इंडस्ट्रियल यूनिट की तरह से मैनेज करते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रबर प्लांटेशन इन मलेशिया, कॉफी प्लांटेशंस इन ब्राजील, टी प्लांटेशंस इन इंडिया एंड बनाना प्लांटेशंस इन वेस्ट इंडीज. दीज आर द एग्जांपल्स. आफ्टर दैट, डेयरी फार्मिंग. You are very familiar with it. Dairy farming has been developed to meet the needs of industrial cities. डेयरी फार्मिंग को इसलिए डेवलप किया गया जिससे कि इंडस्ट्रियल सिटीज के नीड्स को फुलफिल किया जा सके. इसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो यूरोप से स्टार्ट हुआ, वेयर द क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर नेचुरल पास्चर्स. जहां पर क्लाइमेट बहुत सुटेबल था नेचुरल पास्चर्स के लिए. पास्चर्स वही फील्ड है जहां पर कैटल्स जो हैं वो जाकर उनके लिए ग्रासेस और यू कैन से फॉडर्स अवेलेबल होते हैं. सो कैटल आर रियर्ड फॉर मिल्क. कैटल को मिल्क के लिए रियर करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे बड़े शहरों के आसपास, जिससे कि वहां के वर्किंग पीपल जो कि फैक्ट्रीज में काम करते थे उनके नीड्स को फुलफिल किया जा सके. डेयरी फार्म्स नीड ए लार्ज लेबर फोर्स टू लुक आफ्टर द कैटल. कैटल्स को देखने के लिए बहुत ज्यादा लेबर फोर्स की जरूरत होती है. यह अलग बात है कि आजकल मशीन्स आर वाइडली यूज्ड फॉर मिल्किंग. आजकल मशीन सब चीज के लिए यूज होता है, मिल्किंग के लिए, फीडिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए. यानी आराम से एक मशीन जो है आराम से कैटल्स का मिल्क निकाल सकती है, उनको खिला सकती है, उनको साफ कर सकती है. बट ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर नीडेड. Understood, students? So this was different types of farming which we have discussed. So as we know that agriculture is the most important economic activities in the world, we discussed about different types of farming. So it is my humble request to all my students, please read all the topics carefully. Till then, thank you and have a nice day.